Good morning, students. I am Mariam. Today, I am going to teach you science of class 6. This year, I will teach science to you. Every week, I have one class with you. Let's start. The title of the chapter is Nutrition in Plants. Okay? Every living organism on earth requires energy to carry out basic functions called life processes that are necessary to keep it alive. Some examples of life processes are eating, breathing, excretion, response to stimulus, growth, and reproduction. We get the energy to carry out these life processes from food. It means we get energy to carry out all these processes from food. Okay? Nutrition is the process by which an organism gets the nutrients needed for its growth and development. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Nutrition is classified into autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First of all, we will study autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is the kind of nutrition where a living organism makes its own food using simple substances that it gets from its environment. Simple substances means water, carbon dioxide, and mineral salts. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है इन्वायरमेंट के सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके. ओके. Organisms that exhibit this type of nutrition are called autotrophs. जिन ऑर्गेनिजम्स में इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ओके. मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर autotrophs. It means most green plants are autotrophic in nature. They use the energy trapped from sunlight to convert simple substances like carbon dioxide and water into food through process of photosynthesis. It can be understood like this: an autotroph is an organism that can produce its own food using sunlight, water, and carbon dioxide. ग्रीन प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी ट्रैप्ड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके फूड बनाते हैं. इस प्रोसेस को वी कॉल फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट and synthesis means putting together. It means a plant uses light to put together chemical compounds and turn them into carbohydrates. Food. Carbohydrate means food. Photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll.
The process of photosynthesis involves the following steps. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट सन से सनलाइट लेता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, अपने रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है और इन सब को मिलाकर वो अपना फूड बनाता है. Steps are: carbon dioxide is taken in through the tiny pores on the lower surface of the leaf. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपनी लीव्स की लोअर सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करता है. These pores are known as stomata. Singular form of stomata is stoma. The stomata are surrounded by guard cells that control their opening and closing. स्टोमेटा गार्ड सराउंडेड होता है गार्ड सेल से जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है. आर यू लुकिंग द गिवन पिक्चर ऑफ स्टोमेटा? वेयर इज गार्ड सेल? आर यू लुकिंग गार्ड सेल्स? ओके, प्लीज टर्न ओवर. Water is absorbed from the soil by the roots and transported to the leaves through the stem by pipe-like structures called xylem. Water is absorbed from the soil by the roots and transported to the leaves through the stem by pipe-like structure called xylem. Okay. Have you ever thought of water absorption by plants? Mean how plants absorb water and how does water travel from roots to leaves? वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट से होता है और रूट वाटर को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक वाटर को पहुंचाती है जाइलम के थ्रू. क्लोरोफिल द ग्रीन सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट. क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस होता है लीफ में जो सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है. This trapped energy is used to convert carbon dioxide and water into oxygen and simple sugar called glucose. और यही एनर्जी यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ऑक्सीजन एंड सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में. इट मीन्स ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में यूज़ होती है. आर यू लुकिंग द गिवन रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज और प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा. और अब ये जो बनी हुई ऑक्सीजन है ये रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू. द ग्लूकोज इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और जो ग्लूकोज बनता है वो प्लांट्स के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. एक्सेस ग्लूकोज इज़ कन्वर्ट इनटू स्टार्च विच इज़ स्टोर्ड. और एक्सेस ग्लूकोज जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है प्लांट में. Since the leaf is where food is produced, it is called the food factory of the plants. It means leaves are also called food factory of the plants. Leaves को food factory भी कहते हैं plants की. Okay? Are you looking the given picture? Water is taken in by the roots. Roots water absorb कर रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय द लीव्स. लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही हैं. द एनर्जी
इन सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी ट्रैप कर रहा है। और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ग्लूकोज इस ग्लूकोज बना लीव्स में, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होके लीव्स से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आया, एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द लीव्स, और ऑक्सीजन लीव्स से रिलीज हो गई। Plants also convert glucose to fat and proteins. Plants also convert glucose to fats and proteins. Fast. प्लांट्स ग्लूकोज को फैट्स एंड प्रोटीन में भी कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन विच प्लांट्स कैन नॉट टेकन इन फ्रॉम द एयर। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, और प्लांट्स को नाइट्रोजन सिंपल फॉर्म में एयर में नहीं मिलती है, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। दीज फॉर्म्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और यही फॉर्म्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, फोटोसिंथेसिस की क्या उपयोगिता है। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। सॉरी, लाइफ नहीं होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स स्टोर एक्सेस ग्लूकोज एज स्टार्च व्हेन एनिमल्स eat plants, they can use this starch for their life processes. प्लांट एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में जो स्टोर करे हुए रहता है, जब एनिमल्स प्लांट खाते हैं, ईट करते हैं, तो यही स्टार्च का यूज़ वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस में को कंटिन्यू करने के लिए करते हैं। सो हर्बीवोर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हर्बीवोर्स प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटर्स, वाइल कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। जबकि कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पर, क्योंकि वो प्लांट को डायरेक्ट नहीं खाते हैं, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। मीन हर्बीवोर्स जब प्लांट खाते हैं, तो कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स वही हर्बीवोर्स के फ्लैश को खाते हैं, इसीलिए वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। द ऑक्सीजन रिलीज्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स उसे रेस्पिरेशन करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस हेल्प करती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने में। मीन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन करती है। Okay, this topic is completed, and in my previous video lecture I will continue from heterotroph. Okay, I request you all keep on studying at home. Thank you.